In earlier passage we read that anyhow Maharaja managed to kill up to 99 tigers. Anyhow, किसी भी तरह से. Some tigers were killed up to half extent in his Pratibandhapuram, and when lack of tigers came into existence as a problem before him, then he decided to marry with such girls, such princess, in whose state there might be lot of tigers. And after some time marrying, whenever he toured to his father-in-law, then he killed some tigers there. In this way, anyhow, he managed to kill 99 tigers. Now the number was of 100th tiger, but to find out 100th tiger was most difficult task, and he was totally doubtful over this. He wanted to kill hundreds so that he might avoid his unnatural death. वो अपनी मृत्यु को टाल सके, इस पर्पज से वह 100वें टाइगर को मारना चाहता था, लेकिन 100वां टाइगर मिल नहीं रहा था. एंड जब वह वैली में भी इंफॉर्मेशन पाता है, जाता है, तो वहां भी खोजता रह जाता है, टाइगर नहीं मिलता है. ढेर सारे अनाप शनाप डिसीजन लेता है, कड़े डिसीजन लेता है. अंत में मंत्री विवश होते हैं और वो कुछ फैसला लेते हैं और कुछ कार्य करते हैं. अब क्या उनके चीफ मिनिस्टर कार्य करते हैं, वी शैल रीड इन दिस पैसेज हियर. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the seat. In earlier passage, we have also read that when Maharaja started to get angry in lack of 100th tiger, then Diwan purchased or bought a old tiger from the Jew of the Pratibandhapuram. And from there, after purchasing, he brought that tiger to his home, and he hid that tiger into his home in daytime. When night started, then Diwan and his wife made sit that tiger or put into that tiger in his vehicle, car, गाड़ी. टाइगर टू द कार एंड सोड इट इनटू द सीट, और फिर सीट में इसे बांध दिया, छिपा दिया. द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग. यानी टाइगर को दिन भर वो छिपाए रहे. उसके बाद उस टाइगर को जब रात हुई, सारा शहर सो गया, तो टाइगर को अपने कार में दीवान साहब ठूसे, उसे बांध दिए, और उसके बाद खुद उस कार को चलाकर उसी रात टाइगर को उस जंगल में लाए जहां महाराजा जी टिके हुए थे शेर का शिकार, चीता का, बाघ का शिकार करने के लिए. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. When Diwan Sahib brought tiger into the car to forest, and after reaching to the forest, when Diwan Sahib started to drop down that tiger from the car in the forest, then the tiger was not coming out from the car. But anyhow, Diwan Sahib managed to drove out to pull outside that tiger from the car. On the following day, that is on the next day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Next day, when Maharaja woke up from his sleep, day rose, Maharaja started to hunt. Then suddenly what happened? That tiger came just before the Maharaja itself. Tiger itself came just before the Maharaja. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. Crumpled heap means ढेर होता है, crumpled means जैसे कोई घास फूस या कबाड़ वगैरह, घास पत्ती वगैरह इकट्ठी कलेक्ट कर दी गई हो. That is called crumpled heap. And when Maharaja saw that tiger,
Maharaja became extremely happy, extreme happy. He became in the state of extreme happiness, and then took aim at the tiger and shot to death to the tiger. महाराजा निशाना लगाए और उसे मारे टाइगर को कि ये 100वां टाइगर अगर मर जाएगा तो मेरा 100वां टाइगर कंप्लीट हो जाएगा. I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. VOW, vow means होता है oath, शपथ, कसम, प्रण, प्रतिज्ञा. तो कह रहे हैं हैप्पी जब किल कर लिए 100th टाइगर तो महाराज हैप्पी हो गए, खुश हो गए, चिल्ला उठे कि अरे मैंने तो 100वां टाइगर मार दिया. The महाराजा was overcome with elation. Elation means extreme happiness, extreme joy. That is called ecstasy, elevation. So Maharaja was filled with elevation after killing 100th tiger, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. महाराजा जो थे अपने कार की तरफ भागे, ran, hastened towards his car to go to the palace, and more than this he ordered to bring that dead tiger to the royal palace, so that he could show that tiger as a symbol of his victory over the unnatural death as a 100th tiger. 100वें टाइगर के रूप में महाराजा जी एक सिंबल के रूप में टाइगर को लेकर के अपने महल लाने का आदेश दिए और खुद जल्दी से गाड़ी में बैठ करके महल पहुंच गए. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. जब महाराज जी आदेश देकर चले गए कि इस मरे टाइगर को महल लेकर आओ, और खुद तो गाड़ी में बैठकर चले गए, लेकिन जब वो चले गए तब शिकारी टाइगर के नजदीक गए कि ये वास्तव में मरा है कि नहीं, क्योंकि there was some doubt in heart and mind of those hunters. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. Bafflement means होता है घबराहट, हतोत्साहित होना, घबरा जाना, चक्कर खा के गिर जाना. तो जब शिकारी टाइगर के नजदीक गए तो टाइगर बेसुध था. अचानक उसकी होश आया और वो अपनी आंखें गोल गोल घुमा घुमा करके उन शिकारियों की तरफ देख रहा था और खुद गिरा हुआ था, बिकॉज दैट वाज एन ओल्ड टाइगर. और महाराज जो गोली चलाए थे वो गोली उसे ओरिजिनली लगी नहीं थी. महाराज समझे कि मैंने किल कर दिया, लेकिन रियलिटी वाज दैट महाराजा could not kill that tiger due to miss of his shot. महाराज ने जो शॉट चलाया उस टाइगर पे, वह शॉट मिस कर गया, और उस मिसिंग शॉट के कारण वह टाइगर मरा नहीं और महाराज उस टाइगर को मार नहीं सके. The man realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. शिकारियों का एहसास हुआ कि टाइगर मरा नहीं है, महाराज गोली तो चलाए हैं, गोली इसके बगल से गुजरी है, लेकिन उस गोली के सनसनाहट की आवाज से यह टाइगर बेसुध होकर गिर गया है. रियलिटी में गोली इसे लगी नहीं है, ये मरा नहीं है, बेसुध है. The hunters wondered what they should do. अब शिकारी भी चक्कर में पड़ गए कि अब वो करे तो करे क्या. अगर महाराज को बताएंगे कि ऐसा हो गया तो महाराज उन पे भड़क जाएंगे, उनको मार डालेंगे और फिर मारने आएंगे, फिर पता नहीं क्या अफरा तफरी मचाएंगे. अब उन्हें क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए खुद टाइगर को या महाराज को बता देना चाहिए. They decided, यानी शिकारी हंटर्स डिसाइडेड that the महाराजा must not come to know. महाराज को यह नहीं पता चलना चाहिए that कि he had missed his target, कि उसने जो गोली मारी थी वह मिस कर गई, टाइगर अभी भी जिंदा था. If he did, यदि वह जान गए, they could lose their jobs, तो उन शिकारियों की नौकरी जा सकती थी. अगर उन्हें पता चलता महाराज को कि वो जो मारे थे शेर को वो मरा नहीं था, गोली मिस कर गई थी, तो ऐसा जानने से महाराज जो है इनको पनिश करते, इनकी जॉब चली जाती, इनको जेल हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, मृत्यु दंड भी. दे कुड हैंग्ड फॉर द एज द डेथ सेंटेंस. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot. अब एक शिकारी था, उसके दिमाग में कौधा कहा अच्छा रुको, वो 1 फीट की दूरी बनाया टाइगर से एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार दिया. दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क. और इस टाइम उस शिकारी ने इस 100वें टाइगर को मार गिराया. महाराज नहीं, देखो याद करो,
एस्ट्रोलॉजर का था कि 100वां टाइगर तुम्हारी मृत्यु है, ये कहे कि मैं मार डालूंगा। एस्ट्रोलॉजर कहा कि तुम 99 मार सकते हो, लेकिन 100वां टाइगर तुम नहीं मार सकते, 100वें टाइगर से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। महाराज इसलिए खुद की मृत्यु को बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए 100वें टाइगर को मारे, यानी 100वां टाइगर यही बूढ़ा टाइगर था, 99 मार चुके थे, लेकिन ये टाइगर शॉट मिस कर गया, महाराज बच गया, वो टाइगर बच गया, महाराज धोखा खा गए। हालांकि महाराज जानते हैं कि उन्होंने ही मारा है, लेकिन वो धोखा था, वो चले गए। अब शिकारी यहाँ पे उस टाइगर को मार रहा है, महाराज को नहीं बता रहा है। अगर यही वो महाराज को शायद बताए होते, महाराज आए होते, इस टाइगर को अपने हाथ से किल किए होते, तो महाराज इस 100वें टाइगर से नहीं मरे होते, क्योंकि अपने हाथ से 100वां टाइगर मार रहे होते। लेकिन भविष्यवक्ता ने भी कहा था कि सर्टेनली आप नहीं 100वें को मार पाएंगे, आपके हाथ से नहीं मरेगा, बल्कि आप 100वें किसी न किसी टाइगर से मरेंगे। तो शिकारी, महाराज नहीं मार पाए, शिकारी मार रहा है। महाराज से तो केवल बेहोश हुआ था 100वां टाइगर, लेकिन शिकारी ने 100वें टाइगर को मारा है और 100वां टाइगर मरा है, महाराज ने नहीं। इतना याद रखना, आप देखना लेसन में आगे क्या होगा। Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. Tomb means होता है कब्र, जो मतलब बनाई जाती है। तो वो कह रहे हैं राइटर कि अंत में टाइगर तो मर गया, शिकारी ने मार दिया। अब महाराज के आदेश के अनुसार उस टाइगर को ढो करके राजधानी लाया गया महल में, और महल के बगल में कहीं कब्र खोद कर उसे वहीं दबा करके विक्टोरी विजय स्तंभ, विक्टोरी मार्क, विजय स्तंभ सिंबल के रूप में उसकी कब्र बना दी गई, और इस तरह से ताकि महाराज की विजय स्तंभ का निशान रहे, बना दिया गया। A few days later, कुछ दिनों बाद, देखो अब यहीं से टर्निंग पॉइंट होगा, कुछ दिनों बाद द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों बाद महाराज के लड़के का 3रा बर्थडे जो था वह सेलिब्रेट किया जा रहा था, मनाया जा रहा था। यानी टाइगर वाली घटना मरने के बाद, गाड़ने के बाद 3रे दिन जो बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है। Until then, until means since then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. Means up to time, Maharaja was busy in hunting 100th tiger in completion of the number of 100 tiger. But now after killing of 100 tiger in his knowledge, अपने जानकारी में वो 100वां मारे थे, जबकि 100वां वो मार नहीं पाए थे, शिकारियों ने मारा था। कैसे महाराज मरेंगे, अभी मरेंगे, देखना कैसे। तो 100वां टाइगर महाराज नहीं मार पाए। महाराज इज टोटली अनेबल, महाराज कुड नॉट किल 100 टाइगर, बट द हंटर्स किल्ड 100 टाइगर। और महाराज बिजी थे अब तक टाइगर हंटिंग में, वो जान रहे कि हमने टाइगर मार दिया। अब वो अपने राजकाज में लगे हैं, अपने फैमिली में, और अपने बच्चे का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। He had no time to spare for the crown prince. अब वो अपने टाइम, उनके पास अब तक टाइम नहीं था कि वो अपने प्रिंस को कुछ समय दे सकें, लेकिन अब टाइगर को मारने के बाद उनके पास समय हो गया था। But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. महाराज सोचे कि अब कुछ बढ़िया गिफ्ट बच्चे को दिया जाए, अब तुम फ्री हो। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but could not find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अब परफेक्ट गिफ्ट की खोज में महाराज निकल पड़े। प्रतिबंधपुरम अपने साम्राज्य की सारी दुकानें खोज डाले, और खोजते खोजते उन्हें एक दुकान मिली जहां पे उन्हें सुटेबल परफेक्ट स्पेशल गिफ्ट मिला अपने बच्चे के लिए। एंड दैट गिफ्ट वाज अ टाइगर मेड ऑफ द वुड। वह गिफ्ट क्या था? तो टाइगर था जो कि लकड़ी का बना हुआ था। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. और वह जो टाइगर था, what was rate? Rate was 2.25 अन्ना, 2.25 पैसा। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. केवल 2.25 पैसे का था अन्ने का वो टाइगर, लेकिन शॉपकीपर जानता था कि महाराज है, अगर इनको मैं 2.25 पैसा इतना सस्ता बताऊंगा तो ये मुझे इमरजेंसी लगा के जेल में डाल देंगे कि मेरी बेइज्जती किया, मैं महाराज होकर 2 पैसे का टाइगर खरीदूंगा। तब उसने क्या किया? सो ही सेड, तब दुकानदार ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। महाराज, यह जो क्राफ्ट्समैनशिप, हस्तशिल्प, हाथों से बने हुए कलाकारी, कढ़ाई का यह एक अजीबो एक्सट्रीम मतलब अद्भुत एग्जाम्पल है। इससे सुंदर रचना हाथों से किसी
खिलौने की नहीं हो सकती, यह बहुत महंगा है। और बार्गेन एट 300 रुपीज, और अंत में बार्गेन में होता है हैगलिंग, सौदेबाजी। अंत में उस खिलौने का दाम 300 रुपए तय हुआ, यानी जो 2 अन्य का 2.25 पैसे का था उसका दाम 300 रुपए लगा, क्योंकि महाराज थे, कम दाम में उनका अपमान होता है, इसलिए हैवी दाम बोला गया। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तब महाराज बोले बहुत बढ़िया, अब इस गिफ्ट को पैक करो, अपने राजकुमार को मैं गिफ्ट दूंगा, यही टाइगर। Said the king and took it away with him. On that day, father and son played with that teeny little wooden tiger. और जब वह गिफ्ट महाराज लाए अपने बच्चे को दिए, तो उस दिन सारा दिन सारी रात उस टाइगर से ही पापा यानी महाराज और उनके बच्चे खेलते रहे। It had been carved by an unskilled carpenter. Carved means बनाया जाना, and unskilled carpenter means जो carpenter means बढ़ई, unskilled means जो दक्ष न हो, यानी यह जो है ऐसे कारपेंटर द्वारा टाइगर बनाया गया था, बढ़ई के द्वारा, जो कि दक्ष नहीं था, स्किल्ड नहीं था, नौसिखुआ था। इट्स सरफेस वाज रफ, उसका सरफेस जो रफ था। टीनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑफ ऑल ओवर इट, और जो लकड़ी लगा हुआ था, लकड़ी में कील लगे हुए थे, वो कहीं कहीं उभरे हुए थे उस टाइगर की बॉडी में, क्योंकि वो कारपेंटर बढ़िया से गाड़ नहीं पाया था। One of those silvers pierced the महाराजा's right hand, उसमें से एक सिल्वर महाराज के राइट हैंड में पायर्स में गड़ गया वह कील। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince, और महाराज फिर उस कील को निकाल दिए और फिर अपने बच्चे के साथ खेलने में लग गए, और यही महाराज से फॉल्ट होता है। The next day, अगले दिन इन्फेक्शन, यानी वो कील का इन्फेक्शन जो था, यू कैन से टिटनस, फ्लेयर्ड, फैल गया इन द महाराजा's राइट हैंड, महाराज के राइट हैंड में वह फैल गया। In 4 days, 4 दिनों में, it developed into a supporting sore which spread all over the arm, and अंत में supporting, SUPPURATING, इसका मतलब होता है मवाद बनना, बहना। वह जो कील धंसी थी वह घाव हो गई, घाव बन के उसमें से मवाद सड़न होने लगी, वो ठीक ही नहीं हो रहा था, और धीरे धीरे वह महाराज के पूरे शरीर में फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras, 4 बड़े बड़े डॉक्टर लाए गए मद्रास में। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, अंत में डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन, विचार विमर्श हुआ। दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, अंत में वो डिसाइड किया कि महाराज का ऑपरेशन करके ही बचाया जा सकता है। दे कुड सेव महाराजा बाय सेविंग ओनली बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन हिम। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हैपेंड, ऑपरेशन वाज डन। The 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced the operation was successful. अब वो डॉक्टर who made operation, who applied operation on the body of Maharaja, they completed operation, came out and announced that now Maharaja was all is correct, totally correct, बिल्कुल सही हो गए हैं। The Maharaja is dead, और महाराजा जो है वो डेड, अब वो इतना ठीक हो गए कि वो मर गए। वह सक्सेसफुल द महाराज इज डेड, मतलब ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया, लेकिन महाराज जो है वो मर गए। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द ऑपरेटर्स, दैट इज डॉक्टर्स। इन दिस मैनर द 100 टाइगर, इस तरह से द 100वां टाइगर जो था टुक रेवेंज, अपना बदला लिया फ्रॉम द महाराजा, यानी महाराज धोखे में उस टाइगर को, लास्ट वाले को छोड़ दिए, समझे कि मर गया, शिकारी मारे, महाराज को नहीं बताए। अगर महाराज मार दिए होते तो शायद बच गए होते, लेकिन वो अपने हाथ से 100वां नहीं मार पाए, शिकारी मारे। 100वां टाइगर यहाँ आया, लकड़ी के रूप में ही आया, निर्जीव के रूप में आया, लेकिन उसके से महाराज मर गए, और इस तरह से टाइगर ने अपना 100वां टाइगर ने अपना बदला ले लिया। स्टूपिफिकेशन में मूर्खता। इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग